data. Sometimes in paper gives you some raw data and ask you to present it in some appropriate way. No. What is the need of data presentation? The first question arises, what is the need of data presentation? If we go more back, what is data? Can anyone among you define what is data? The raw form of information. Raw facts and figures are called data. When you do research in any discipline, you collect data. Whether it is from social sciences, from biological sciences, industrial sciences, engineering, or whatever your subject is. When you do some sort of research, you collect data. And the data that you have collected in that form, it doesn't tell you anything. Whether it is mere the numbers, or it is mere the scaling of something, or it is mere the properties of something. The next thing is to present the data. I can say you have to convert that into information. What is the difference between data and information? Information is the processed data from where you can conclude something. There are two ways to present the data. One is the tabular method. And the second is the graphical method. In tabular method, you simply make tables of the data. It could be one-way table, it could be two-way table or three-way table. If you are making table based upon a single character, then it will be one-way table. If you are going for presenting two variables at the same time, it will be two-way table. And if you go for presenting three variables at a time, three different characters of some population at a time, then you will go for three-way table. Another important term in my mind, what is the difference between population and sample? आज हमने स्टैटिक पढ़नी है. What is the difference between population and sample? पॉपुलेशन सर जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम सैंपल कहते हैं. और जो पॉपुलेशन होती है वो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है. You can have information regarding sample, complete information. You can have regarding sample. Population is a sum total of all entities under discussion. For example, I say you that you people have to go for the intelligence level at your school. Then the population under study is all students of your school. But normally we don't go for so detailed because it is quite rigorous, it is laborious, it is time consuming, it is resource consuming. That is why we just take some individuals whose IQ level we generally check. And those individuals are a sample. So sample is basically true representative portion of some population. True representative portion of some population. Whenever you do some research, whenever you do some experiment, when you collect data, you don't go for the whole population. Rather, you go for certain individuals. And the selection of those individuals is based upon the true representation. We will also study a different sampling method because in 2019 paper, you have a question regarding sampling. Okay? Now I come back towards the data presentation. If you have this book, please go to page 116. First is the tabular form, very simple. ये बुक सब लोगों के पास है. कोई ऐसा बंदा जिसने अभी नहीं ली,
मेरे लेक्चर में ये लेके आया करें, खासतौर पे एबिलिटी में। उसमें ये होता है कि क्वेश्चन वहां लिखने पे टाइम नहीं वेस्ट होता, ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं आप। इन टेबुलर फॉर्म you go for arrays। टेबुलर फॉर्म में जो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज arrays। arrays क्या होते हैं? arrays are basically matrix of rows and columns। क्या मैट्रिक्स पढ़े हैं आप लोगों ने? इसको आप कॉलम कहते थे उर्दू में। तो उसमें रॉज और कॉलम होते थे। तो किसी भी डेटा को आप रॉ और कॉलम की शक्ल में जो शो कर देते हैं, दिस इज द वेरी सिंपल वे ऑफ टैबुलेटिंग द डेटा। नीचे मैंने एक डेटा को जो है वो टैबुलेट किया हुआ है। यू कैन सी वी कैन इजीली वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसके अंदर हम मिनिमम वैल्यू को चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो हम नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करेंगे। एज इन दिस डेटा we have 5 rows and 5 columns, so our total number of observation is 25। 5 into 5, each row contains 5 observations, and we have 5 rows, so at total we have 25 observations। Okay, we can go for the mode, we can go for the median। मोड और मीडियन क्या है, ये मेरे एक और लेक्चर का हिस्सा है। मीन, मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीजें एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होते हैं सिंपल टेबल, जो मैंने आपको कहा वन वे टेबल। तो व्हाट यू पीपल डू, आप किसी भी डेटा को अगर वन वे टेबल में शो करते हैं तो इसको सिंपल टेबल्स कहते हैं। जैसे यहाँ एक टेबल बना है, एजेस ऑफ स्टूडेंट्स है और आगे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो दिस इज द सिंपल डाटा। पहले दो कॉलम्स को देखें कि पहले कॉलम के अंदर आपने एज ऑफ स्टूडेंट्स लिखी, स्टूडेंट्स हैविंग एज 90, 20, 21, 23, 24, and then you have gone for the frequency। Frequency means number of individuals, number of students in each age group। So in first age group you have 14 people, in the second age group you have 23 people, in the third age group you have 134 people। ये डाटा आपको दिया होगा सिंपल वैसे, इसको आपने क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जांपल ये डाटा आपको ऐसे देगा, वो 19, 18, 19 से शुरू हो रहा है ना, 19, 20, 23, 20, 19, 24, 21, 22, 23, 24, इस तरह करके दिया होगा। तो आपने इसका टेबल कैसे बनाना है, आपने एक तरफ उनकी एजेस को लिख लेना है और दूसरी तरफ आगे फिर देखते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर द एजेस, या जितने आपके पास एज के लेवल्स हैं, दैट इज 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। तो यहाँ आप इसकी टैली बनाओगे। तो टैली में क्या होगा, 19, 20, 23, then is again 20, then is 19, then is 24, then is 21, then is 22, then is 22, then is 24। इस तरह आप करते जाओगे, जितना भी आपके पास डाटा है, आप हर वो डाटा जो आप पढ़ोगे उसकी टैली आप एक लाइन लगाते जाओगे। अब एक और चीज यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 22 की 4 वैल्यूज हो गई हैं, तो मैंने 4 पूरी कर दी यहाँ। अब पांचवी भी आ जाती है, तो पांचवी की टैली में क्रॉस लगाऊंगा ऐसे। ये चीज आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में। क्रॉस लगाने का मतलब क्या होता है कि जब आप इसकी काउंटिंग करोगे तो आपका जो चांस ऑफ एरर है, चांस ऑफ काउंटिंग एरर, वो नहीं आएगा। मतलब एक तो आप सिंपली एक यूनिट लोगे कि ये 5 वैल्यूज है, तो जितनी आपकी वैल्यूज बनेगी आप यहाँ पे सबके आगे वो लिख देंगे जितनी जितनी। फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 इंडिविजुअल है तो फ्रीक्वेंसी विल बी 2, यहाँ आपके पास फिर 2 है, फ्रीक्वेंसी विल बी 2, 1 है, फ्रीक्वेंसी विल बी 1, 5 है, फ्रीक्वेंसी विल बी 5, 1, 2। तो जितनी भी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी बनेगी आप नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे। समझ आ गई बात की? तो इसको हम कहते हैं वन वे टेबल्स। ओके, अब इसमें एक और चीज यहाँ मैंने मेंशन की हुई है, वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होती है, देखिए आपने जो टोटल फ्रीक्वेंसी, जैसे इस केस में 400 पीपल है टोटल, तो आपने हर ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 400 से डिवाइड कर लेना है। मतलब फर्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 14 थी,
आप जब इसको 400 पे डिवाइड करोगे तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.035 आएगी। ठीक है, तो आप इस तरह हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वैसे ये आता नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सही निकाली या नहीं, यू हैव टू चेक इट। इट इज वेरी सिंपल मेथड टू डू सो। आप सब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे, आप तमाम ग्रुप्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे एंड योर आंसर शुड बी 1। इफ इट इज नॉट 1 देन आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही नहीं निकाली। लेकिन एक बार मैं और बता रहा हूं कि पेपर में ये चीज वो पूछता नहीं है। आपसे सिंपल हो जाएगा, 1 वे टेबल बनाए तो आपने ये 2 कॉलम बनाने, जैसे ये तीसरा बना दे। ठीक है, 2 वे टेबल बनाए, 3 वे टेबल बनाए, तो ये साथ फ्रीक्वेंसी बतानी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टैग हो जाती है। उसके बाद 2 वे टेबल, जैसे मैंने बताया कि आपका 1 वे टेबल या सिंपल टेबल जो है इट विल बी बेस्ड अपॉन अ सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर लिया था हमने? एज। हमने इंडिविजुअल्स को विद रिस्पेक्ट टू एज क्लासिफाई किया। हमने कहा वी हैव सो मेनी पीपल इन द 19 ईयर एज, सो मेनी पीपल इन 20 ईयर, 21 ईयर, 22 ईयर। So when at the same time you divide some data, you distribute some data, you arrange some data based upon 2 characters, based upon 2 characteristics. For example, you can see here, first is the course and other is the result. We have 3 courses, BA, BCom and BSc, and we have 3 type of results: pass, supplementary and fail. Page 117 पे है ये information। मिल गई आपको या नहीं? तो इसमें क्या है, उसने एक ही टाइम पे 2 कैरेक्टर्स को लेके डाटा को डिवाइड किया हुआ है। वो 2 कैरेक्टर्स क्या हैं? एक है कि which are the courses. He has given 3 courses here: BA, BCom and BSc, and 3 type of results: pass, fail and supplementary. Okay? तो इसको हम कंपाउंड टेबल भी कहते हैं, जहां पे सिंगल कैरेक्टर की बेस पे डाटा को डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक द फर्स्ट टेबल इन व्हिच वी हैव टेकन द एज एज द क्राइटेरिया। उसको हम सिंपल टेबल कहते हैं, जहां पे हम मोर देन 1 पैरामीटर्स की बेस पे डिवाइड करते हैं। जैसे अभी हमने 2 पैरामीटर्स को लिया, कोर्स एंड रिजल्ट, तो हम इसको फिर कहते हैं 2 वे टेबल या कंपाउंड टेबल। अब 3 वाला होगा वो भी कंपाउंड होगा, 4 वाला भी कंपाउंड है, 5 वाला भी कंपाउंड है। पर इतना कॉम्प्लेक्स टेबल बहुत मुश्किल बनता है। मुश्किल से मुराद उसको समझना भी मुश्किल होता है, इंटरप्रेट करना भी मुश्किल होता है, बनाना भी मुश्किल होता है। तो दैट इज व्हाई जब कभी इफ समवन अमंग यू फ्रॉम द रिसर्च, जब हम एक ही वक्त पे कहीं पे 3 पैरामीटर्स का एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसके रिजल्ट्स को आप 3 वे ना एक्सप्रेस करें, बल्कि 2 वे एक्सप्रेशन बना लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है वेट, एज एंड हाइट, इन 3 पैरामीटर्स को आप स्टडी कर रहे हैं। यू कैन से फॉर सम एनिमल साइंसेस की आपकी रिसर्च है, उसका वेट, उसकी एज और उसकी हाइट बेस्ड अपॉन सम फूड। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, बजाय इसके कि आप 3 पैरामीटर्स को लें, आप इसमें जो है वो डिफरेंशिएबल टेबल बना लें। वेट और एज का बना लें, वेट और हाइट का बना लें, एज और हाइट का बना लें। तो इस तरह करके चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की बजाय सिंपल रखें। बट इन योर पेपर इफ ही इज आस्किंग यू अबाउट 3 वे टेबल, यू हैव टू गो फॉर दैट। ओके, तो इसमें आपके इस कोर्स में ये टेबल बनाने नहीं आते, सिंपली वो पूछेगा कि डाटा को, जब इसको कहते हैं डाटा टैबुलेशन भी कहते हैं, कि डाटा टैबुलेशन किस तरह की जा सकती है। तो आप लिखेंगे सिंपल टैबुलेशन है, उसमें डाटा को एक वेरिएबल के मुताबिक अरेंज करते हैं, या उसमें कंपाउंड टैबुलेशन है। कंपाउंड टैबुलेशन में मोर देन 1 पैरामीटर्स, मोर देन 1 कैरेक्टर हम लेते हैं और डाटा को उसके लिहाज से डिवाइड करते हैं। बात समझ आ गई है? This was the data tabulation or presenting data in tabulated form. The second is the graphical method. तो ग्राफ के अंदर हम लाइन ग्राफ को डिस्कस करेंगे, हम बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे, हम पाई ग्राफ को डिस्कस करेंगे, हम हिस्टोग्राम को डिस्कस करेंगे, हम पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे। जितना टाइम इसमें हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल
सिंगल लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ क्या है कि आपने किसी डेटे को जो है वो लाइन की शक्ल में शो करना है। अब इसमें मेरे पास अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यही डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर एजेस। तो कहता है इसका लाइन ग्राफ बनाएं। अब देखिए लाइन ग्राफ बनाते वक्त आपने सबसे पहले देखना है कि आपने स्केल क्या लेना है। आपका जो भी स्केल इसमें डिटरमिन होगा वो दो चीजों की बेस पे होगा। आपके पास यहाँ बेसिकली दो चीजें हैं, एज है और नंबर ऑफ पर्सन है। एक बात ध्यान में रखिएगा, एक वेरिएबल आपका ऐसा होगा जो फिक्स इंटरवल से बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल वो होगा जो फिक्स इंटरवल से नहीं बढ़ रहा। फॉर एग्जांपल इस डेटा के अंदर फिक्स इंटरवल से क्या बढ़ रहा है? एज। क्या डिफरेंस है? 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। 19 ईयर, 20 ईयर, 21, 22, 23, 24। तो जो चीज आपकी फिक्स इंटरवल से बढ़ रही है उसको आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है। जो चीज आपकी फिक्स इंटरवल से बढ़ रही है उसको कहां लेना है? एक्स एक्सिस पे लेना है। और जो चीज आपकी वेरिएबल इंटरवल से बढ़ रही है उसको वाई एक्सिस पे लेना है। बात समझ आई है नहीं आई? अब नाम में ये होता है कि जो चीज आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं वो एज सच जो लिखी है वही लेनी है। मतलब 19, 20, 21, 22, 23 ये सारा आप नीचे लेंगे। अब आपने वाई एक्सिस को जो डिसाइड करना है वो आपने देखना है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी, मैक्सिमम कितनी। तो अब इस डेटा के अंदर आप देखें कि आपके पास मिनिमम 8 है और मैक्सिमम आपके पास 149 है। मिनिमम आपके पास जो 24 एज के लोग हैं दे आर 8 पीपल और जो आपके पास मैक्सिमम है 22 ईयर वाले हैं दे आर 149। तो अब आप इसका स्केल कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें देखें आपने इस ग्राफ को एक पेज पे बनाना है। एक पेज भी पूरा नहीं, आप हाफ पेज यूज करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कितना इंटरवल रखेंगे। तो यहाँ पे इसने 20 का दिया है, आप लाजमी नहीं कि इस वाला 20 यूज करेंगे, आप 15 का इंटरवल भी ले सकते हैं। अगर आप 15 का इंटरवल लेंगे तो आपका ग्राफ इस साइड को थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप 25 का भी ले सकते हैं, आप 10 का भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एक नॉर्मलाइज जो है वो लेवल पे रहे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वैल्यूज इस तरह है 150 तक है, 200 तक है, तो आप 20 का डिफरेंस ले लें। आपकी वैल्यूज 500 तक आती है, आपकी फ्रीक्वेंसी 500 तक जाती है, तो आप 50 का डिफरेंस ले लें। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 तक चली जाती है, तो आप जो है वो 100 का डिफरेंस ले लें। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी 5000 तक चली जाती है, आप 500 का डिफरेंस ले लें। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये कि आपके वो जो लेवल्स हैं उसके वो 7, 8, 10 इससे ज्यादा ना। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जब आप कर रहे हैं इसको सिंपल पेपर पे, अगर आप ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं वैसे या कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो बेशक आप पॉइंट्स में डिफरेंस ले लें, वो हर चीज बना देता है। आपके पास आजकल सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर पे आप हर चीज को जितना मर्जी डिफरेंस लेके कर ले, वहां पे सिंपली आपने डाटा पुट करना है और सॉफ्टवेयर में खुद आपको ग्राफ दे देना है। जैसे आपके पास पाइथन है, आर है, एसपीएसएस है, स्टैटिस्टिक्स है, एमस्टेट-सी है, एंड देयर आर सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर। अगर आप उनमें अपना डाटा रन करते हैं तो आपको बने बनाए ग्राफ दे देते हैं। लेकिन चूंकि हम जनरल एबिलिटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपने हाथ से बनाने हैं, तो आप की रूल को याद रखेंगे कि आपने 8-10 इंटरवल्स को देखना, उससे ज्यादा नहीं करना। तो अब यहाँ पे मैं 15 का डिफरेंस लेता हूँ। तो 15 का डिफरेंस लेने के लिए क्या है, अब ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली ये इस ग्राफ में से है। ये मेरे पास प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। जिस जगह पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन को आप हमेशा 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। तो अब मैं इस पे इक्वल इंटरवल्स पे लाइंस लगाऊंगा, यहाँ 15, 30,
45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 and 150. अब आपने देखना मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 149. सो आई हैव डन ओके. ऐसे ही है ना. तो अब इस साइड पे मैंने जो क्लासेस लेनी है 19, 20, 21, दे शुड बी इक्वली स्पेस्ड. दे शुड बी इक्वली स्पेस. इसका तरीका ये होता है पेपर के अंदर. अब यहाँ पे आप गिने कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना. तो आप इसको 6 सेंटीमीटर मार्क कर ले वहां पे. या आप ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 12 सेंटीमीटर मार्क कर ले. वो करके आप यहाँ पे इक्वल स्पेस पे पॉइंट्स लगा लें स्केल के साथ. लगा लिए. लगाने के बाद आप देखिए पहली क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 19 वालों की कितनी है 14. तो आप क्या करेंगे उसी स्केल को पकड़ेंगे. पहली लाइन में यहाँ 14 पे पॉइंट लगा देंगे पेंसिल के साथ. ये है 19 एज के लोग. आगे आपके पास जो 20 एज के लोग हैं दे आर 23. तो आप फिर दूसरी लाइन के सामने क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने इक्वल स्पेस लगाया था उसके सामने आपने वाई एक्सिस पे तकरीबन 23 तक जाना है. तो 23 तकरीबन यहाँ बनता है. ओके, समझ आ गई बात की. उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में आपके पास 21 वालों में 134 पीपल हैं. तो फिर आप इसके सामने स्केल रख के करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. स्केल के बगैर करेंगे तो फिर आपका ग्राफ सही नहीं बनेगा. तो आप इसको ले जाएंगे यहाँ 134 पे. ये तकरीबन यहाँ पे आता है. उसके बाद ये 19 वाले थे, ये 20 वाले थे, ये 21 वाले थे. नेक्स्ट 22 वाले 149 पीपल हैं. ऐसा ही है जी. तो आप 22 वालों का आप कहां तक जाएंगे, यू विल गो अप टू हियर. ओके. और उसके बाद 23 वाले आपके 71 पीपल हैं. तो आप यहाँ 23 लिखेंगे और 71 ये 75 है. थोड़ा सा इससे नीचे यहाँ लगाएंगे आप पॉइंट. ठीक है. और उसके बाद 24 वाले जस्ट 8 पीपल हैं. आप 24 लिखेंगे और ये 15 है. 15 का आप तकरीबन यहाँ बनता है. या आपने इसको जो है वो ग्रिड बना लिया. अब आपने क्या करना है, स्केल पकड़े, उसी स्केल से ओरिजिन से शुरू करें. यूं यूं यूं. दिस इज योर लाइन ग्राफ. सर लाइन ग्राफ में ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं जी. यहाँ ओरिजिन से करते हैं. बाकी आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है. जब आप कोई टेक्निकल वर्क करते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, बुक लिखते हैं, उसमें जो डायरेक्शंस होती हैं आपको उसके मुताबिक चलना होता है. यहाँ पे नाम क्योंकि जस्ट बेसिक्स है तो आप लोग ओरिजिन से स्टार्ट करना है. दूसरी बात, आपने इनको लेबल करना है. अब इस साइड पे आपने क्या लिया है, एजेस. तो यू कैन राइट हियर सिंपली एजेस और यू कैन राइट हियर एजेस ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. इसके नीचे आपने whatever the parameter you have taken on x-axis you will mention that. तो आप यहाँ लिखेंगे ages या ages of students भी लिख सकते हैं. और इधर ये आपकी फ्रीक्वेंसी है तो you will write here frequency. या आप लिख सकते हैं number of students. This will be more appropriate. Number of students लिखते हैं. समझ आ गई बात. So this is the simple line graph. It is showing just a single parameter या ages of the students. इसी तरह एक होता है मल्टीपल लाइन ग्राफ. तो मल्टीपल लाइन ग्राफ में क्या होता है, आप एक ही ग्राफ के ऊपर 2-3 पॉपुलेशंस को शो करते हैं. जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपके पास जो है वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स उसने दिए हैं. मतलब यूओएम के हैं, डीएमबीएस के हैं, यूटीएम के हैं. ये 3 डिफरेंट इदारे हैं जहाँ के स्टूडेंट्स हैं. और इधर उसने एज बताई है. अच्छा, अब अगर तो आपका सिंपल लाइन ग्राफ तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं, आपने ये लाइन लगा दी, दैट्स ओके. लेकिन जब आपने एक ही ग्राफ पे 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज को शो करना है तो फिर आपने इनके लिए डिफरेंट स्टाइल्स की लाइन लगानी है. एक तो आपके पास पेपर में तरीका ये है कि आप चूंकि वहां पे ब्लू और ब्लैक 2 मार्कर यूज कर सकते हैं, 2 पेंसिल यूज कर सकते हैं. आप एक लाइन ब्लू से लगा दें, एक ब्लैक से लगा दें और तीसरी लाइन आप डॉटेड लाइन लगा दें. ठीक है.
समझ आ गई बात की है नहीं? दूसरा तरीका ये है कि आप एक को डॉटेड कर दें, एक को आप क्या वो ट्रायंगल बना दें, एक को इसी तरह प्लेन रहने दें, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। तीसरा तरीका ये भी है, आप एक बारीक लाइन रखें, दूसरी को मोटी लाइन कर दें, या एक सिंगल लाइन कर दें, दूसरी को डबल लाइन कर दें। तो ये व्हाटएवर द स्टाइल यू हैव टू चूज, कि आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो भी स्टाइल यूज करें, आप जितनी भी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम इट, डिफरेंस वाज़ेह ज़ाहिर होना चाहिए। समझ आ रही बात? और यहाँ आपने इसका रिजल्ट देना होता है, ये लाइन लगा के आप सिंगल वाले में बेशक नाम भी दे तो काम चल जाता है। अब देखिए, ये हमारा सिंपल लाइन ग्राफ था। अब उसने आगे दूसरी पॉपुलेशन जो इसमें ऐड की है वो डीसी एमबीएस की है। तो पहले ग्रुप में 8 लोग हैं, तो आप इसका भी उसमें 14 थे, इसमें 8 है, तो इसमें भी आप 19 वाले आपके 8 लोग हैं। मैं यहाँ इसको अदर पेंसिल से लिखूंगा। उसके बाद 20 वाले 52 लोग हैं, तो 20 वाले आप ग्राफ को ले जाएंगे 52 तक, इट विल बी राउंड अबाउट हियर। फिर उसके बाद 21 वाले 101 है, तो आप जाएंगे इसमें जी तकरीबन यहाँ पे। 130। उसके बाद 133 है, तो आप जाएंगे तकरीबन यहाँ पे। फिर उसके बाद 54 है, तो आप जाएंगे, ये 60 आ जाता है यहाँ पे। और उसके बाद 18 पीपल हैं, तो आप जाएंगे 15 से थोड़ा सा ऊपर। तो इसकी लाइन भी आप यूं ही शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉपुलेशन है यूटीएम की। तो यूटीएम में हमारे पास फर्स्ट एज ग्रुप में 2 लोग हैं, तो आप इसको जो है वो 2 लोग आप 19 को तकरीबन यहाँ पे। उसके बाद 20 में 23 लोग हैं, तो इसको आप तकरीबन यहाँ पे। 21 में आपके पास 152 पीपल हैं, तो इसमें फिर आप यहाँ पे रिलेशन में भी 165 तक चले जाएंगे, क्योंकि अब आपकी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो 22 में 152 पीपल हैं तकरीबन यहाँ पे। उसके बाद 98 पीपल हैं, 98 किसमें है? 22 में, ये 21 में थे। 22 में आपके 98 लोग हैं तकरीबन यहाँ पे, और 23 में आपके 34 पीपल हैं तकरीबन आप यहाँ पे आएंगे, और लास्ट में 13 पीपल हैं 24 पे, आप तकरीबन यहाँ पे आएंगे। अब इसकी आप लाइन जो है यूं करेंगे ड्रा। अच्छा, इसकी लाइन आप यूं ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, एक तो तरीका ये कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस को ड्रा करें। दूसरा तरीका इसका, अच्छा अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस ड्रा करेंगे, आपने हर लाइन का बताना है। मतलब आपकी पहली लाइन किसको शो कर रही? ब्लैक लाइन, इट इज शोइंग यूओएम, आप लिखेंगे यूओएम। दूसरी लाइन आपकी क्या शो कर रही है? डीसीएमबीएस, डीसीएमबीएस। और ये लाइन आपकी किस चीज को शो कर रही है? यूटीएम। दूसरा तरीका ये भी आप सबको मार्कर डिफरेंट लगा दें। मार्कर डिफरेंट लगाने का तरीका क्या है? मतलब अब मैं एक रफ ग्राफ यहाँ पे और बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये 3 लाइन है, मैंने एक डमी स्ट्रक्चर बनाया।
आपके पास ये जो पहली लाइन है, फर्ज करें ये यूएम की है, तो आप इसके मार्कर यूं लगा दें। तो यहां लिख दें यूएम। दूसरी लाइन आपकी जो है उसके आप मार्कर यूं लगा दें। इसका आप लिख दें यू डीसी एनपीएस। और तीसरी लाइन के आप मार्कर यूं लगा दें, ट्राइएंगल्स लगा दें इस पे। तो इसको आप लिख देंगे यू टी एम। आप ये स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। आप लाइन का स्टाइल डिफरेंट कर दें, या आप लाइन के ऊपर जो मार्कर हैं उनका स्टाइल डिफरेंट कर दें। अगर आपने मार्कर यूज करने हैं तो मार्कर की फिलिंग करें कंप्लीट वहां, ठीक है। इसी तरह आप इसके नीचे एजेस व नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको यूं प्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल लाइन ग्राफ। सिंपल लाइन ग्राफ जस्ट शो अ सिंगल पॉपुलेशन, और मल्टीपल लाइन ग्राफ जो है इट शोज मोर देन वन पॉपुलेशन। दो भी हो सकती है, तीन भी, चार भी, ठीक है। तो पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 आएंगी, 3 से ज्यादा नहीं आएंगी। सर ओरिजिन से हम उस डाटा को स्टार्ट करते हैं जो कंटीन्यूअस वेरिएबल हो, और जो डिस्क्रीट वेरिएबल को होता है वो हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते। इसमें यहाँ ये इशू नहीं है, आप ओरिजिन से नाम स्टार्ट करें, काट भी लें, इतना कोई इशू नहीं है। आपने सिंपल ग्राफ बताना है कि किस तरह डाटा को प्रेजेंट करते हैं। आप ओरिजिन से नाम शुरू करें, आपके नंबर नहीं कटेंगे। कर भी लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। Next type of chart is pie chart. Pie chart is a circular diagram और इसमें जो है वो relative proportion को शो किया जाता है different groups की। For example, मेरे पास ये जो डाटा है पास फेल वाला, इसमें तीनों कोर्सेज में जो है वो बीए के टोटल 53 पीपल हैं, बीए 53 हैं, बीकॉम के जो हैं 43 पीपल हैं, और बीएससी के जो हैं 64 लोग हैं। मैं इसका पाई ग्राफ बनाना चाहता हूं।
पाई ग्राफ के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि डाटे को शो करने का सबसे सिंपल तरीका पाई ग्राफ है। पाई ग्राफ में क्या होता है, हम एक दायरा लगाते हैं, आप उसको जितने हमारे पास क्लासेस हैं आप उनमें डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसकी डिवीजन के लिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप रिलेटिव साइज बताते हैं, मतलब यहाँ आपके दायरे को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, आप किस बेसिस पे करेंगे, एंगल के लिहाज से करेंगे, ठीक है। मतलब आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप इसका टोटल करेंगे 10 6 10 6 16 160 आ गया। अब आपने बीए का एंगल कैसे निकालना है, 53/160 into 360, 43/160 into 360 और 64/160 into 360। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है कि आप, मैंने 360 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दायरे में टोटल एंगल 360 होते हैं, ठीक है। ये जरा मुझे कैलकुलेटर पे करके बताइएगा जल्दी। एक एक वैल्यू कर ले, एक आप कर ले, एक आप कर ले, कोई और जिसके हाथ में कैलकुलेटर है वो कर ले जल्दी। फर्स्ट का कितना है, 119.25। सेकंड का 96.140। अच्छा, यहां में एक चीज मैं बताऊंगा आपको, हम 0.25 को हाथ से ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको 119 रहने देते हैं, 0.25 इधर से कम कर दिया और यहाँ पे इसको फिर नेक्स्ट ले जाते हैं, इसको 97 कर लेते हैं, ठीक हो गया। मसलन आपको उसने जितनी भी क्लासेस दी आपने ऐसे उस डाटा को लिखा, तो कि देगा ही ऐसे लिखा हुआ कि गलत बनाया हुआ है बुक के अंदर इसने, तो फिर आप जो है उसको जमा कर लेंगे, हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये करके आपके पास रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ ईच क्लास आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ज्योमेट्री बॉक्स साथ लेके जाना है पेपर के अंदर, उस पे पाबंदी नहीं है, कैलकुलेटर पे पाबंदी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दायरा लगाओगे, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, कोई माजूर उसके लिए, दायरा लगा के उसके ओरिजिन से किसी एक साइड पे ये कर दोगे, ठीक। ये करके लाइन लगा के अब आपने प्रोटेक्टर, या प्रोटेक्टर का पता है ना, छोटे होते इस्तेमाल करते रहे हैं, तो आपने पहला एंगल 119 का तकरीबन यहां तक बनेगा, ये लाइन लगा देनी, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट इस पे प्रोटेक्टर रखना है, पहले बेसिस को माना था ना ये एंगल, अब इस पे प्रोटेक्टर रखेंगे, इस पे प्रोटेक्टर रख के अगला एंगल आपका 97 होना चाहिए, तकरीबन इतना बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वाला इसको बेस रख के आप जो है वो करेंगे, तो 144 का ये बन जाएगा। अब इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे चेक हो जाती है, चेक कैसे हो जाती है, आपने पहला एंगल 119 का किया, दूसरा एंगल आपने जो है वो 97 का किया, तो तीसरा कितना बचना चाहिए, लास्ट वाला। अगर लास्ट वाला नहीं बच रहा उतना, तो इसका मतलब आप कहीं पे को हैंकी कर चुके हैं, तो आप उसको रिकंसिडर करें, दोबारा देखें कि किस एंगल को आपने बड़ा छोटा कर दिया। ये करने के बाद आप उसकी लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग वेरी सिंपल, इसमें बीए लिख दे, इसमें बीकॉम लिख दे और इसमें बीएससी लिख दे, और इसकी कैप्शन आप ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी आप लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन रोड फॉर बीए बीकॉम एंड बीएससी, जो उसने ऊपर दी है, ठीक है। तो ये पाई ग्राफ है। इसमें अब जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम ये आते हैं कि हम इसमें रिलेटिव साइज ऑफ ईच ग्रुप लेते हैं। अब बाज़ दफा वो हमें जो है वो आंख से देखते हुए नजर नहीं आता, मसलन अब देखिए अगर एक ग्रुप में 53 लोग हैं और दूसरे में 56 हों, तो उनके एंगल में कितना फर्क पड़ना है, 1-2 डिग्री का। तो आप यहाँ पे 1-2 डिग्री को बाई और आई जज नहीं कर सकते, आपको दोनों तकरीबन बराबर लगेंगे, तो दैट इज व्हाई इसका ये वाहिद डिमेरिट। दूसरी बात ये है कि पाई ग्राफ के ऊपर हम जो है वो सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है। अगर हम एक से ज्यादा वेरिएबल लेते रिप्रेजेंट हो जाता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स इतना हो जाता है कि समझ नहीं आता। तो अब मैंने अगर यहाँ पे इसी को मैं पकड़ता हूँ टेबल को, कि इसमें मैंने 3 हर एक के पास फेल और सप्लीमेंट्री वाले बनाने हैं, तो मुझे 3 पाई ग्राफ बनाने पड़ेंगे हर ग्रुप को अलग शो करते हुए। जब 3 पाई ग्राफ बनाऊंगा, वो हर ग्रुप के अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे बता देगा, लेकिन उनकी रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताएगा। उसके लिए मुझे ये वाला ग्राफ यूज करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से पाई ग्राफ जो आपका होता है, ये ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता रिसर्च के अंदर, इसलिए कि इससे आप एक वक्त में एक पैरामीटर को डिस्कस कर सकते हैं। ये इसका डीमेरिट है। आपको पेपर के अंदर पाईग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है, उसमें वो जो है आपको 5 से 6 क्लासेस देगा। ठीक है, मसलन ज्यादातर इसका क्वेश्चन आता होता है कि एक फैमिली का इतना बजट जो है वो फूड पे खर्च हो रहा है, कितना ट्रांसपोर्टेशन पे हो रहा है, इतना टैक्सेस पे हो रहा है, इतना जो यूटिलिटी बिल्स पे हो रहा है, इतनी सेविंग है। तो फैमिली इनकम जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को या उसका कंजम्पशन पैटर्न जो है उसको पाई ग्राफ से शो करें। ये आ सकता है, या आ सकता है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट कमोडिटीज की ये प्राइसेस हैं, आप उन प्राइसेस को जो है वो पाई ग्राफ से शो करें। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं यू विल ऐड देम, जो टोटल आएगा उस पे हर एक को डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करें। 360 से मल्टीप्लाई करने के पीछे क्या लॉजिक है कि आपने चीजों को सर्कल में रिप्रेजेंट करना है, आपने सर्कल के सेक्टर्स बनाने हैं। तो इसलिए आप सर्कल के जब सेक्टर बनाते हो तो आप 360 से मल्टीप्लाई करते हो, बिकॉज़ अ सर्कल हैज 360 एंगल। यहाँ मेरा एक और इरेलेवेंट क्वेश्चन है, हाउ यू पीपल कैन प्रूव दैट अ सर्कल हैज 360 टोटल एंगल। आप कहते हैं सर्कल में 360 एंगल है टोटल, यू आर अ फिजिक्स, बताएं तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे स्टेटमेंट? आपने लेमैन को बताना है, तो पढ़ा लिखा नहीं है मेरी तरह का, पाई रेडियन को तो जानता हो। और व्हाट विल यू डू फॉर दैट? आप देखें, आप सर्कल के अंदर अगर 2 परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो सर्कल 2 हिस्सों में तकसीम, 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आपका ये एंगल क्या है? राइट एंगल, 90 का। आपका ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? तो 90 के कितने एंगल बन रहे सर्कल में टोटल? 4। तो फिर इन 4 का सम क्या होगा? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, इट विल बी 360। समझ आ गई बात? पाई ग्राफ समझ आ गई? नेक्स्ट से आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, वहां से देख सकते हैं। या इसके लिए मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन वाला इसमें आगे क्वेश्चन किया है, उसमें ये बहुत सारे ग्राफ्स इस तरह के बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। डाटा प्रेजेंटेशन में अगर तो आपसे उस टाइप के ग्राफ के बारे में पूछता है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी डमी डाटा छोटा सा डेवलप करके उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या वो आपको डाटा देगा कि इसका फलां टाइप का ग्राफ बनाएं, और या आपसे उसकी डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि पाई ग्राफ के जो है वो मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखे मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इस तरह बार ग्राफ के इन सारी चीजों को तो आपने देखना है कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर तो आपसे वो उसकी डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो आपने डमी एग्जांपल छोटी सी कुछ डेवलप कर लेनी है, उसमें कंपल्सरी नहीं कि 6 क्लासेस ही बनाए, इस तरह की 3 वाले भी कर सकते हैं। मतलब आप कहेंगे आपके पास बीए वाले जो हैं 36 लोग हैं, बीएससी वाले आपके पास 48 हैं, और बीकॉम वाले आपके पास 72 पीपल हैं। तो इस तरह का आप सिंपल सा डाटा ले लें, ठीक है। अब इसका सम करेंगे, कितना बनेगा? 14 9 16, 4 4 8 7 15, 156। तो ये क्या आएगा? 36/156 ज़रब 360, उसके बाद 48/156 ज़रब 360, और उसके बाद 72/156 × 360। तो इसको आप सिंपली कट कर सकते हैं चीजों को, बहुत सिंपल है। मसलन 4 पे काटते हैं, ये 9 आ गया, इसको 4 पे काटते हैं 39 आ गया। आगे फर्दर इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, मतलब कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, आप सिंपल से सिंपल डाटा लेंगे तो आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं।
ठीक है, बेशक आप अपना एक डाटा खुद तैयार कर लें, उसमें सिंपल वैल्यूज दे लें, आपने सिर्फ डमी एग्जांपल दे दिए, लेकिन अगर उसने आपको कुछ डाटा दिया हुआ है तो फिर आपने उस पर वर्क करना है, उसका वो ग्राफ बनाना है। बाद में वो कहता है ग्राफ बनाए, और बाद में वो पूछता है कि इस ग्राफ के मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, इट इज इनफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज बार ग्राफ। This is the most commonly used type of graph. इसको बार चार्ट भी कहते हैं, बार ग्राफ भी कहते हैं, और इसका पर्पस जो होता है डिस्प्ले क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ बार्स। बार्स बनाई होती है ऊपर को आपने, इसमें सेट ऑफ बार्स whose heights are proportional to frequencies। अभी हम बनाते हैं ये बार ग्राफ। अच्छा, इसमें भी सिंपल बार ग्राफ भी होती है और मल्टीपल बार ग्राफ। इसमें तीन तरह की बार बननी है, सिंपल बार, मल्टीपल बार, कंपोनेंट बार। ये तीनों अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सिंपल बार में क्या है, हम इतना ये कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं लेते, मैं अपने पास से एक डाटा लेता हूं सिंपल सा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये एज ग्रुप्स हैं। 19 वाले हमारे पास 25 लोग हैं, 20 वाले 14 हैं, 21 वाले 60 लोग हैं, 22 वाले 20 लोग हैं, 23 वाले 70 लोग हैं, और 24 वाले जो हैं दे आर 50 पीपल। मैं ये सिंपल डाटा ले रहा हूँ, वहां नहीं चेंज करना डाटा अगर उसने को दिया है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए किया है चेंज, कि चीजें इजी हो जाए थोड़ी सी। अच्छा जी, इसमें ये है एज और ये है फ्रीक्वेंसी। जिस तरह आपने लाइन ग्राफ बनाया था उसी तरह से आपने बार ग्राफ बनाना है। अब इसमें इसी तरह आप पहले इसका स्केल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर स्केल हम हमारी मैक्सिमम वैल्यू 70 तक जा रही है। हाउ अबाउट टेकिंग इंटरवल ऑफ 10? इज इट एप्रोप्रिएट? तो हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। 5 minute people 10, 20, 30, ओके। अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है आपने, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आपको उसने सिंपल बार ग्राफ की बात करेगा या मल्टीपल बार ग्राफ की बात करे या कंपोनेंट बार ग्राफ की बात करे, तो वहां पे इन तीनों में आपने जो बार्स बनानी है उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए। अगर विड्थ डिफरेंट कर देंगे, पहला 2 इंच का है, अगला 2.5 इंच का है, अगला 2 इंच का है, फिर अगला 4 इंच का है, आपका क्वेश्चन गलत है। वो एक सर्टेन कंडीशन होती है कि जिसमें हम उनकी विड्थ को भी चेंज करते हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर पेपर, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों पे वो नहीं जाता, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है बार ग्राफ के अंदर कि आपने बार्स की विड्थ को इक्वल रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इधर आपकी एजेस आ जाएंगी, इधर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कोशिश करें इसको इस तरह लिखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स you can say more valid। x एक्सिस को x एक्सिस में लिखें, y एक्सिस को y एक्सिस में। किसी ने कभी एक्सेल पे ग्राफ बनाए? जब एक्सेल पे बनाते हैं तो उस वक्त आप ये करते हैं कि जो आपका वर्टिकल होता है एक्सेस टाइटल, उसको आप रोटेटेड करके लिखते हैं। तो वहां पे भी 2-3 लफ्ज लिखने मुश्किल नहीं होगा, यूं आपका पेपर है, पकड़ के यूं कर लें और बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। ओके, तो अब आपके पहले ग्रुप में 19 एज में कितने लोग हैं? 25 पीपल हैं। आप यहाँ पे एक बार बनाएंगे, 25 यहां तक आता है। पहली बात, the width of bars should be equal। दूसरी बात, the distance, the space between bars should also be equal। This is for the beautification। इसका कोई टेक्निकल इशू नहीं है, जो स्पेस है बार्स के दरमियान, ठीक है। जो विड्थ है वो टेक्निकल बात है। अगर आप उसकी विड्थ इंक्रीज कर देंगे, एक की कम कर देंगे, एक की बढ़ा देंगे, तो उनकी वेटेज में फर्क आ जाएगा। समझ आ रही बात की? अब उसके बाद नेक्स्ट में है आपके पास 40 पीपल, इसके नीचे 19 लिख दें, इसके अंदर भी 19 लिख सकते हैं आप, नो इशू। उसके बाद 20 इयर्स के आपके पास 40 पीपल हैं।
दिस विल बी योर सेकंड बार, मेरे से बड़ी बन गई है, आपने वहां स्केल यूज करना है, इक्वल बनानी है, समझ आ गई बात की। उसके बाद इन थर्ड 21 यू हैव 60 पीपल, ओके। फिर उसके बाद 22 यू हैव जस्ट 20 पीपल, यहां स्पेस बढ़ गई मेरे से। उसके बाद 23 में 70 पीपल, उसके बाद 24 में 50 पीपल, इनके नीचे लिखते हैं 21, 22, 23, 24। और बेहतर होता है, मसलन अगर दूर से देखेंगे तो पता नहीं चल रहा बार्स कहाँ है और स्पेस कहाँ है, तो आप क्या करें, बार्स के अंदर कोई इस तरह हल्की सी लाइन लगा दें, लेकिन इन सब बार्स में एक ही तरह की लाइन लगानी है। अगर आप डिफरेंट तरह की लाइन लगाएंगे तो इट मीन यू आर शोइंग डिफरेंट पैरामीटर्स, अभी मैं उस पे जा रहा हूं, तो आप एक ही तरह देंगे, इसके अंदर हल्की फुल्की डिजाइनिंग कर दें, कोई इसके अंदर डिब्बे बना दें, दायरे बना दें, कोई इस तरह से आप लाइंस लगा दें, इट्स अप टू यू, यू कैन डू बेटर देन, ओके। ये है सिंपल बार चार्ट। इसका भी आपको उसी तरह टाइटल देना है, यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं। अगर यहाँ टाइटल देना है तो सिंपल टाइटल लिखेंगे, अगर फिगर कैप्शन देनी है तो यहाँ FIG लिख के आगे उसी टाइटल को लिखते हैं, कैप्शन नीचे होती है, टाइटल ऊपर होता है। ये आपने दोनों इसके साथ एक्स और वाई एक्सिस की लेबलिंग करनी है, इधर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इधर उनकी एजेस हैं, ओके। क्लियर होगी थी बात। उसके बाद है मल्टीपल बार चार्ट। तो मल्टीपल बार चार्ट में क्या होता है, मल्टीपल बार चार्ट में कितने लोगों को ऐसा समझ आ रहा है ऑनेस्टली? Some people are not telling the reality, rather they are just sitting here. Be attentive please. Okay, तो मल्टीपल बार चार्ट के अंदर जो है हम एक ही वक्त पे एक से ज्यादा पैरामीटर्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि ये हमारे पास 3 पॉपुलेशंस हैं जिनमें हमने एज को स्टडी किया। फर्स्ट पॉपुलेशन इज फ्रॉम टाउन ए, द सेकंड पॉपुलेशन is from town B and the third population is from town C, okay? तो टाउन B में 19 के एज के 40 लोग हैं, इसमें 30 है, इसमें 50 है, इसमें 20 है, इसमें 65 है, इसमें 10 है, इसमें you can say 25 है, इसमें 10 है, इसमें 60 है, इसमें 40 है, इसमें 40 है, इसमें 30 है। तो मैंने एक डमी डाटा लिया है जिस फॉर इजनेस। तो इसमें भी आप उसी तरह से जो है वो जिस तरह आपने लाइंस लगाई थी 3, आपने हर एज ग्रुप के 3-3 बार बनानी। अब 19 एज की 3 बार बनेगी। पहली बार जो है इट विल बी फॉर टाउन ए, सेकंड बार विल बी फॉर टाउन बी, थर्ड बार विल बी फॉर टाउन सी। सिमिलरली फॉर एज 20 यू विल डू द सेम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बार, ओके। क्लियर होगी बात। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। इंटरवल वही लेते हैं जी 10 का। यहां पे आप एजेस, अब इसमें जब आपने बनाना है तो बेहतर है, क्योंकि वहां पे आपने बनानी थी सिंपल 6 बार, यहाँ आपकी 18 बार बननी है। तो बेहतर है आप अपने पेज को डिवाइड कर लें इस लाइन में। मसलन आपकी 6 बार जो बननी है, हर एक में आगे 3-3 बार बननी है, तो आप हर एज के लिए एरिया स्पेसिफाई कर दें इक्वल, ठीक है। एक एज की बार्स के दरमियान फासला नहीं छोड़ना। मसलन 19 की तीनों बार इकट्ठी बनेगी, 20 की तीनों बार इकट्ठी बनेगी, 21 की तीनों बार इकट्ठी बनेगी। अब 19 वाली 3 और 20 वाली 3 में फासला होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम 19 वाली को ड्रा करते हैं, 25 पीपल, ट्वेंटी वाले 40 पीपल, 21 वाले 60 पीपल,
22 वाले 20 पीपल, 23 वाले 70 लोग, और 24 वाले 50 लोग। अब देखिए मैंने इसको पहले बैलेंस भी किया तो मुझे एंड में इधर को जाना पड़ा है। तो आप हर ग्रुप के लिए पहले बैलेंसिंग कर लें, सबके लिए इक्वल डिस्टेंसेस जो छोड़ने हैं। अब आ देखिए बी के लिए 19 वाले 40 लोग हैं। अब देखिए जब मैंने पहले डिफरेंट एजेस की बात बनाई मैंने स्पेसेस छोड़ी। अब मैंने 19 एज वाला बी का जो बनाना है वो इसके साथ बनाऊंगा। 40 पीपल, 50, 65, उसके बाद 25, उसके बाद 60, उसके बाद 40, अब थर्ड पे आ जाता हूं 30, उसके बाद 20, उसके बाद 10, फिर 10, 40, और उसके बाद 30। नाइनटीन, 20, 21, 22, 23 एंड 24। अब यहां से कुछ पता नहीं चल रहा, इतना पता है कि 3 बार 19 को शो कर रही है। तो अब क्या करना है, अब आपने इसकी पैटर्निंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है। तो आप क्या करेंगे, हर एक के पहले में ये करते हैं। पहला किसको, टाउन ए को शो कर रहे हैं। ये आप साथ साथ भी कर सकते हैं। सेकेंड वाले में सीधी लाइन लगा दे ब्लैक कलर की। हर एक के सेकेंड में नंबर ऑफ लाइंस इक्वल होनी चाहिए। विड्थ भी इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस भी इक्वल होनी चाहिए। थर्ड में आप कुछ और कर सकते हैं। थर्ड में आप इस तरह की लाइन लगा दें। क्या हुआ, क्या लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। अब ये देखिए, अब ये शो कर रहा है कि 19 एज में 3 कैटेगरीज हैं। स्टिल हमें नहीं पता कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। हमें, चलो हमने तो ग्राफ बनाया, हम जानते हैं कि पहली किसको शो कर रही, दूसरी किसकी। अब एक तीसरा बंदा, उसके सामने आपने सिर्फ इस ग्राफ को रखा है, तो ये ग्राफ इतना बता रहा है कि वी हैव द 6 एज लेवल्स 19 to 24 and in each age level we have 3 different categories. अब कैटेगरीज क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है। आप लिखेंगे, इसका टाइटल दे डिफरेंट एज पीपल इन 3 टाउन्स ऑफ अ सिटी। तो आप अब इसका रीजन बनाएंगे।
A, B, C। चूंकि आपने B के अंदर ब्लैक लाइंस लगाई है तो आप उसको ब्लैक से शो करेंगे, अगर आपने ब्लू लगाई तो ब्लू से शो करेंगे। अब ये आपके पास डाटा नहीं भी है, इधर आप उसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। अब आपके पास ये डाटा नहीं भी है, ये ग्राफ आप जिसके सामने भी रखते हैं, that person will readily understand it कि you have 6 different age groups and in each group you have 3 different categories. The first bar is showing people from town A, the second bar is showing the people from town B and the third bar is showing people from the town C. तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट, कि आपको 2 पॉपुलेशंस का भी 3 का भी आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। उसको मैंने 3 वाला बना दिया, कहीं आप जाकर सोचते ना कि सर आसान क्वेश्चन करवा दिए, मुश्किल हमारे लिए छोड़ दिए। तो इस तरह से आप जो है एक मल्टीपल बार ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद आपका जो है एक और बार ग्राफ होता है जिसको कहते हैं कंपोनेंट बार ग्राफ। मे भी वो यहाँ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है। तो कंपोनेंट बार ग्राफ में ये होता है, देखिए मल्टीपल में क्या है, हमने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या किया है, अलग-अलग बार बनाई। कंपोनेंट बार ग्राफ के अंदर हम हर एज के लिए बार एक ही बनाएंगे, लेकिन आगे उस बार के 3 हिस्से करेंगे। कैसे करना है हम उस पे आते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आप इसका टोटल करेंगे। पहले ग्रुप में कितने बनते, 70 और 25 95 लोग, दूसरे में 110, तीसरे में 135 क्यों जी, चौथे में 55, पांचवे में 170, छठे में 120। अब पहले आप टोटल का बनाएंगे और फिर उसके पार्ट्स करेंगे। कैसे, अब ये हमारी वैल्यू 170 तक चलेगी, तो हम कितने का इंटरवल लें, 20 का ले लें। अब यहाँ देखिए आपकी वैल्यू 170 तक आई है, यहाँ अब आप 20 के इंटरवल से जा रहे हैं, ये नहीं कि 160 के बाद 170 लिखते हैं, वहां आपने 180 लिखना है। अगर ऊपर 200 भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, बल्कि इसको ज्यादा अच्छा समझा जाएगा। अब आप पहले टाउन ए पे आए, सॉरी 19 एज वाले 95 पीपल हैं, तो आप एक बार यहाँ पे डिवेल्प करेंगे जिसका टोटल 95 तक है। उसके बाद 20 वाले 110 लोग हैं, तो आप एक बार डेवलप करेंगे जो कि 110 तक जा रही है। उसके बाद आपकी तीसरी बार 21 वाली 135 तक जा रही है। चौथी बार आपकी 22 वाली 55 तक जा रही है। पांचवी बार आपकी 23 वाली 170 तक जा रही है। छठी बार आपकी 120 तक जा रही है। 120 इनके नीचे लिखिए 90, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ओके, अब ये आपने सिंपल बना लिया। क्या हुआ जी, गलत करवा रहा हूं? ओके, अब इसमें आपने डिफरेंट ग्रुप्स को मैनेज करना है। अब सबसे नीचे ए को ले लें, ए में 25 लोग हैं, तो पहली बार में 25 पे लाइन लगा दें। बी में 40 लोग हैं, इसकी 40 पे लाइन लगा दें।
बात समझ आ रही? यस सर। उसके बाद 60 है, इसमें 60 पे लगा दें। उसके बाद 20 है, इसमें 20 पे लगा दें। उसके बाद 70 है, इसमें आप 70 पे चले जाएंगे। उसके बाद 50 है, इसमें आप 50 पे आ जाए। ओके जी। अब उसके बाद दूसरे ग्रुप को पकड़ना है 40। अब 25 से 40 कहां तक जाएगा? 65 तक जाएगा ना। प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। पहले ग्रुप के जितने जितने एक्चुअल वैल्यूज थी लाइनें लगा दी। अब देखिए दूसरे में क्या है, 40 लोग हैं, तो 25 इसका है, ऊपर वाला 40 कहां तक? 65 तक। तो ये दूसरा ग्रुप होगा। पहला 25 है ना, टोटल बार है 95 की। पहला आपका 25 था, दूसरा बी टाउन के लोग जो है 40 है, तो पहला 25 यहां तक, अगले 40 यहां तक, टोटल 65 बन गया। और तीसरा हिस्सा बच गया सी ग्रुप का। समझ आ गई जी बात की? उसके बाद इसमें पहले 40 है और अगले 50 है। तो अब क्या करेंगे, 40 के बाद 50 90 पे इसको कट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरे ग्रुप के अंदर 60 है, 65 है, 60 और 65 135। आप इसको यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है। उसके बाद 20 25 10, 20 था, 25 और ऊपर गए 45। उसके बाद 70 60 40 70 और 70 के बाद 60 130 पे जाएंगे, आप यहां तक चले जाएंगे। उसके बाद 50 के बाद 40 90 तक जाएंगे आप। दिस वाज द 50 एंड 40 90 यहां तक जाएंगे। अब इसमें भी उसी तरह वहां पे क्या किया था, 3 डिफरेंट बार्स को आपने जो है वो डिफरेंट कलर्स दिए थे, डिफरेंट डिजाइन दिए थे। अब आपने एक ही बार के 3 हिस्सों को डिफरेंट डिजाइन देने। मसलन आप सबसे नीचे वाले में यूं करते हैं, इसमें खाली भी छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। वहां पे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगना है आपका, ज्यादा टाइम नहीं लगना। दूसरे वाले में आप न्यू लाइन लगा दें हर एक के। खाली छोड़ने का मतलब यह है कि एग्जामिनर समझेगा बंदा थक गया है। तीसरे वाले में आप ब्लू लाइन लगा दें। सेंटर वाला खाली छोड़। ये आपकी अपनी सिलेक्शन है, इट शुड बी डिफरेंट। इसी तरह आप इसका लेजन बना दें जी। ए बी सी, तो ये देखें, इसको हम कहते हैं कंपोनेंट बार ग्राफ। कि हमने एक ग्रुप के लिए एक बार डेवलप की और फिर उस एक बार को फर्दर आगे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब यही ग्राफ इसके रिवर्स भी बन जाता है। रिवर्स कैसे? कि आप यहाँ पे टाउन लें, यहाँ पे टाउन लें और एजेस को डिवाइड करें। लेकिन ऐसा ग्राफ रिकमेंड नहीं किया जाता। रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता कि हर टाउन में कितने लोग हैं, 6 कैटेगरीज आती ना एज की, फिर आपको हर ग्राफ 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इट बिकम्स क्वाइट लेबोरियस। तो अब वो वहां पे आपको बताएगा नहीं कि किस पैरामीटर को नीचे ले। एप्रोप्रिएटनेस, सूटेबिलिटी, ये आपने डिसाइड करनी है। तो आप कोशिश करेंगे कि इस तरह से चीजों को अरेंज करें कि आपको हर ग्रुप के आगे थोड़े कंपोनेंट करने पड़े। अगर मैं एजेस को नीचे ले लेता, सॉरी टाउन्स को ले लेता, तो मेरे पास 3 ग्राफ बनते, ए बी सी, 3 बार्स बनते। लेकिन हर बार कितने हिस्सों में डिवाइड होती? 6 हिस्सों में। उसमें मिस्टेक के चांसेस भी ज्यादा थे, उसमें कैलकुलेशंस भी ज्यादा थी, और उसमें मुझे लेजेंड्स भी ज्यादा लेने पड़ने थे। ये डिजाइन जो है, तो 6 हिस्सों में तकसीम करके 6 लेने पड़ने थे ना। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो इसलिए ये आपने वहां पे डिसाइड करना है कि आपके पास यहाँ पे बेशक ये नंबर ऑफ बार्स बढ़ जाए, लेकिन नंबर ऑफ पार्ट्स और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स थोड़े होने चाहिए। जी ये फर्स्ट वाला 24
25 है ना, जी यहाँ हमने 25 लगा दी, बी वाले 40 है, सर 40 और सी वाले 30, मतलब कि ट्रैक लाइन गलत हो जाएगा। देखिए ये 25 यहाँ तक आ गया ना, जी सर, आगे 40 65 यहाँ तक चला गया, उससे आगे कितना बचा 30, तो वो ऊपर आ गया, टोटल मेरा 95 तक, 65 और 30 95 पूरा हो गया। वो ठीक है सर, मैं कह रही हूँ सर जैसे 25 और 40 हमने लगाई है, तो 25 की तरफ 40 और 30 की सीधी सीधी लगाए तो ऐसे गलत हो जाएगा। 25 और 30 की क्या करें? सर 25 की ब्रेक लगा दी है ना, हाँ। इसी तरह हम उसके ऊपर 40 लगा दें और उसी तरह हम ऊपर 30 लगा दें तो ऐसे गलत हो जाएगा। नहीं गलत नहीं होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसको शुरू किया उसको कंप्लीट करें। बस पहला इसका 25 पहले आपने टोटल वाले बना लिए, अब कंपोनेंट बना के आगे, आपके कहने का मकसद ये कि 19 वाले को पहले कंप्लीट कर ले, तो यू कैन डू, पहले इसमें 25 के ऊपर 40 साथ लगा के आगे चलते जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? टाइम तो नहीं हुआ अभी, 10 मिनट रह गए। उसके बाद या कंपोनेंट बार चार्ट की सिर्फ हेडिंग दी हुई है, आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, तो ये मैंने आपको डाटा देके उससे कंस्ट्रक्ट करके दिखा दी है। सर इसी पे बना दें इसको, हिस्टोग्राम भी इसी से बना दें। इससे नहीं बन सकती इसको। हाँ, ये- इसके लिए कम्युनिटी अच्छा जी, कम्युनिटी उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। Histogram, this is the most widely used, I can say, acceptable way of presenting data, or the Shannon method of presenting the graphs. Histogram is the most popular and widely used. Histogram में क्या होता है? Histogram में सबसे पहली बात ये है कि आपके पास किसी भी चीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप पेज नंबर 124 पे देखें कि आपके पास एक टेबल बना हुआ है, एज ग्रुप, रियल लिमिट्स, मिड क्लास वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, 4 कॉलम दिए हैं इसमें, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें आती हैं जो आपको वो देगा पेपर में, एज ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसी, एज ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसी। अगर वो बाकी भी दे देता है तो ये उसकी मेहरबानी है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि वो नहीं देता। यहां में मैं एक और डिफरेंस बताना चाहूंगा, हिस्टोग्राम मैंने समझानी है, बनानी नहीं, आज बहुत पढ़ा दिया। तो डिफरेंस ये है कि हमने जितने भी बार चार्ट बनाए हैं, सिंपल बार चार्ट बनाया, कंपोनेंट बार चार्ट बनाया, मल्टीपल बार चार्ट बनाया, इन सब में हम क्या करते हैं कि बार्स के दरमियान डिस्टेंस छोड़ते हैं। बार्स के दरमियान क्या छोड़ते हैं? डिस्टेंस। जबकि हिस्टोग्राम में आप बनती उसमें भी बार दिए, लेकिन उसमें आप जो है वो डिस्टेंस नहीं छोड़ सकते, बार्स एडजेसेंट टू ईच अदर होती है। तो आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लेके चलना है। कितने लोगों ने ये चीजें पहले पढ़ी हुई है? फिर से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। वो एक लतीफा बना हुआ है ना, अगर आप इसे कोई आले तशरीह तो माजरत के साथ कहते, शियार की एक मजलिस थी तो उन्होंने एक जाकिर को हायर किया, बहुत हाई जो है वो पे करना था उसको। जाकिर साहब पहले दिन आए, उन्होंने आगे पूछा लोगों से कि आपको पता है तो इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ? लोग कहते हैं हमें नहीं पता। मैं तो फिर यहाँ करने क्या है, जाओ सारे यहाँ। अगले दिन लोग जो है वो सोच के आए कि किसी ने ये नहीं कहना। तो अगले दिन वो फिर आया, फिर कहने लगा कि आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? कहते हैं हमें सारा पता है। कहता है अगर पता ही है तो फिर मेरे पास क्या लेते हैं, मैंने क्या बताना है आपको? तो ऑन द थर्ड उन्होंने कहा यार ये इतना काबू नहीं आता। कुछ लोग कहेंगे कि हमें पता है, कुछ कहेंगे नहीं पता।
तो ऐसे ही मैंने कहा वापस कहता यार जिसको पता है वो दूसरे को बता दे, मेरा क्यों टाइम लाया। तो ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो किसी ने भी नहीं पहले पढ़े, लेकिन जिन लोगों ने पढ़े हैं, अगर मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज नोटिफाई मी टू दैट, ठीक है? तो मुझे बताते जाएं, क्योंकि ये आप सबके करियर का मसला है इसके अंदर। सर वही था जो स्टार्ट वाला था ना, वो डिस्क्रीट डाटा जब हमारे पास होता है तो हम वो आपकी बात स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। इतने माइनर पॉइंट, उसका बेसिक चीज ये देखनी कि आपको मेजर टाइप ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन का पता है। लेकिन चले आप कह रहे बार बार, तो कर लेते जी कि आप उसको जीरो से ना स्टार्ट करें, फर्स्ट ग्रुप से आगे सर इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा वाई एक्सिस पे लीजिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस पे लेना है। ये अच्छा जी, बहुत थोड़ी सी बात करूंगा नेक्स्ट। हमारे पास एज ग्रुप्स है 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, and 56 to 60. And next we will give you the frequency. Frequency is 5, 12, 23, 39, 32, 21, 9 and 2. आपको इतना डाटा देगा वहां, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मैं आपको दो कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, मिड वैल्यू। एक होती है और क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, उसके बाद बात खत्म। क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू। अच्छा, ये जो उसने आपको एक रेंज दी है, लोअर और हायर वैल्यू, ये या तो क्लास लिमिट होगी या क्लास बाउंड्री होगी। अब फर्क क्या है दोनों में? अब देखिए ये वैल्यू कितनी है 25, और ये क्या है, ये कितनी है 30, और ये क्या है। अगर ये वैल्यूज डिफरेंट हैं तो दीज आर कॉल्ड द क्लास लिमिट्स। अगर ये वैल्यू सेम है तो फिर इसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। बात समझ आ गई? अच्छा, इसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। इसको क्या कहते हैं? लोअर क्लास लिमिट, एलसीएल। और इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट, यूसीएल। इसी तरह सेकंड क्लास की ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, लोअर अपर। अब जब आपने हिस्टोग्राम बनानी है तो अगर उसने आपको क्लास लिमिट्स दी हुई है तो आपने पहले उसको क्लास बाउंड्रीज में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? बात दफा वो करके दे देता है, स्टार्टिंग में उसने करके दिया हुआ है आपको, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें से एक्सट्रैक्ट करके जितना बेसिक डाटा वो लिखा है कि ये क्लास लिमिट्स होती है। और बात दफा यहाँ उसने एज ग्रुप लिखा है, बात दफा वो लिख भी देता है ऊपर क्लास लिमिट ये है। नहीं लिख रहा तो आपको धोखा देने के लिए वो एज ग्रुप लिख देगा, तो आप कहेंगे ये क्लास बाउंड्रीज हैं, आप आगे चल पड़ेंगे। दिस इज नॉट राइट। पहले आप देखें, डिसाइड करें कि लिमिट है या बाउंड्री है। अगर तो वैल्यूज डिफरेंट है, अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, इफ दे आर डिफरेंट दीज आर द क्लास लिमिट्स, ओके। और अगर ये सेम है तो बाउंड्रीज हैं। अब आपने कैसे इसको करना है? क्लास लिमिट्स, और इससे आपने बनानी है क्लास बाउंड्रीज। चलो बात को गौर से सुन लीजिएगा, दो फिक्रों में छोटी सी। लोअर को 0.5 कम करते जाएं, अपर को 0.5 बढ़ाते जाएं। मैं आपको सिंपल इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कैसे कैसे करना है, फार्मूलाज में नहीं जा रहा, सिंपल बता रहा हूं। लोअर को 0.5 कम कर दें, अपर को 0.5 बढ़ा दें, तो ये क्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी। अब ये 26.5 है तो ये 0.5 कम हो गई 25.5, और ये 30.5। अब ये 31 है तो ये 30.5 मादरत के साथ, और ये 35.5, ठीक है। उसके बाद ये 36 है, 35.5, 40.5, आगे ये 40.5, 45.5, आगे ये 45.5,
50.5, 50.5, 55.5 और 55.5, 60.5। एंड समझ आई मैंने क्या किया? कितने लोगों को समझ नहीं आई? सिंपली लोअर को 0.5 कम करता गया हूं, अपर को बढ़ाता गया। पहली क्लास में देखिए मेरी लोअर क्लास लिमिट क्या थी 21, उसमें 0.5 कम किया, क्या रहेगी? नाश हो गया। 0.5 कम करो, क्या रहेगी? 20.5। समझ आ गई बात की? और जो अपर है वो 25 थी, उसको 0.5 बढ़ाया तो क्या होगी? 25.5। अब नेक्स्ट क्लास में आ गए, उसमें लोअर क्या थी? 26 थी, 0.5 कम कर दे, कितनी रहेगी? 25.5। और अपर 30 थी, उसको 0.5 बढ़ा दे, 30.5 होगी। इस तरह सारे की आप देखें कि दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसको कहते हैं क्लास लिमिट टू क्लास बाउंड्री चेंज। फिर कह रहा हूं, चेक द डेटा केयरफुली, समटाइम ही हैज गिवन यू क्लास बाउंड्री। अगर क्लास बाउंड्री दी है तो उनमें 0.5 प्लस माइनस नहीं करने लग पड़ना। अगर दोनों सेम है, क्रॉस चेक करके देखें, अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही तो उसने कुछ काम आपका कर दिया पहले। समझ आ गई बात की? और अगर डिफरेंट है तो फिर आप करेंगे। ये था क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री का। अच्छा, अब इसका एक और फर्क होता है। एक चीज आती है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल होता है कि क्लास का साइज कितना रखा है, क्लास की विड्थ कितनी रखी, कितने लोगों का ग्रो लिया हो। तो अब देखिए 21 से 25 तक कितना फर्क है? 4 वाले कितने लोग हैं, 5 वाले कितने लोग हैं? ये फर्क 5 का है। क्लास लिमिट आपको एक्चुअल फर्क नहीं बताती। मतलब 21 से 25 में 21 भी आएगा, 25 भी आएगा। 21, 22, 23, 24, 25। तो 25 माइनस 21 कितना होता है? 4। तो आपने जब क्लास इंटरवल निकालना है क्लास लिमिट से, तो उस वक्त आपने जो डिफरेंस आएगा उसमें +1 करना है। भाई देखिए, क्लास लिमिट से आपका फर्क 4 आया, आपकी क्लास का साइज कितना है? 5 है। तो क्या किया, जो डिफरेंस आया उसमें 1 प्लस करना है। लेकिन क्लास बाउंड्री आपको धोखा नहीं देगी। 25.5 में से 20.5 निकाले, कितना बचता है? 30.5 में से 25.5 निकाले, कितना बचता है? तो एक्चुअली हमने किया यही है कि वो जो डिफरेंस था उसको अपर और लोअर लिमिट पे डिवाइड कर दिया है। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास साइज भी कहते हैं, क्लास विड्थ भी कहते हैं। समझ आ गई बात की? क्योंकि क्लियर है? उसके बाद चौथी चीज है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट हर क्लास का। अब ये आप जिससे मर्जी निकाल रहे सेम आना है। मिड वैल्यू क्या होगी? अगर इससे निकालता हूं तो क्या करूंगा? 21 जमा 25/2, अपर और लोअर को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें। 25 और 21 कितना होता है? 46/2। कितना आया? 23 आया। क्यों नहीं? और अगर इधर देखता हूं तो इधर क्या करूंगा? 20/5 जमा 25/5/2। 20 और 25 45 और आधा है 46/2। यहां से भी 23 आया। समझ आ गई बात की? क्यों जी? क्लियर है? आज मैंने जितने कॉन्सेप्ट बताए क्लियर है? मिड पॉइंट नहीं समझ आया? भाई आप क्या क्लास लिमिट्स को ले लें, अपर और लोअर को जमा कर दें, हर क्लास की अपर और लोअर को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें, या क्लास बाउंड्री को ले लें, जिसको मर्जी ले कर लें, तो उसे सेम आएगा। समझ आ गई बात? अगले आप निकाल भी सकते हैं आप इसी तरह, और आप उनको वैसे भी लिख सकते हैं। मसलन पहला 23 आया, अगला आपका क्लास इंटरवल कितना है? 5 है ना, तो अगला क्या आएगा? करके देख लो। 26 से 56 तकसीम 2 28। ठीक है, उससे आगे कितना आएगा? 33। आगे 38, आगे 43, आगे 48, आगे 53, 58। तो यू कैन गो इन दिस वे। पसंद इसमें आपने एक पहला निकालना होता है, आगे जो है वो आप उसमें ऐड करके माइनस करके चलते जाते हैं। क्लियर होगी जी बात? तो दिस वाज टुडेज लेक्चर। अब इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजी, उसके 2 नाम है। ये एक ही चीज के 2 नाम है, और हिस्टोग्राम।
We will make them in the next lecture, then we will continue for the next. Any question up to here? समझ आए तो क्वेश्चन करें आप. I have studied math up to matriculation. After that, I have gone to the biological sciences. But still, Alhamdulillah, I am teaching math there. So, all the questions I will answer. Thank you. जी बेटा. Yes, sir.